الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ماشاء اللہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا خوبصورت بیان سماعت فرمائیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نغدر إن الله تعالى جاعل لك فرجا ومخرجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوالقعدہ کا مہینہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے. اس مہینے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ والا سفر فرمایا ہے. ہم عموماً اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اگر آپ اکابر کی کتب کو پڑھیں تو وہ انہیں فتح حدیبیہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف صلح حدیبیہ نہیں ہے، یہ فتح حدیبیہ ہے. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے. یہ مدینہ مکہ مکرمہ سے 9 میل مدینہ کے راستے پر ہے. آج کے دور میں 15 سے 16 کلومیٹر 20 کلومیٹر کے اندر بنتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کے ساتھ ٹھہر کے جو معاہدہ کیا ہے کافروں سے، وہ ایک معروف اور مشہور واقعہ ہے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں آج کے عنوان پہ یہ بات قدر تفصیل سے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس میں واقعے کے اندر کچھ عقائد، مسائل، فضائل، دلائل جو ہوں گے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے. یہ سورۃ فتح ہے، آیت نمبر 27 ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. یہ خواب حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہے، سال ہا سال ہو گئے ہیں مکہ کی زیارت نہیں کی، بیت اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت مکہ میں بیت اللہ کی زیارت کرتے تھے، مگر اب مدینہ میں ہیں، دیکھ نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اٹھ کر خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں، کوئی سر کا حلق کرا رہا ہے، کوئی سر کے بال منڈا رہا ہے، اور ہم مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. حضور کا خواب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، میں اس پر عقیدہ چھیڑ رہا ہوں. پیغمبر کا خواب صرف خواب نہیں ہے، پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی ہے. بقرہ عید میں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ شاید آپ نے اس طرز پہ نہ سنا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے بیٹے سے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک. میں نے خواب دیکھا تو میں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کیا فرمایا؟ افعل ما تؤمر. اللہ کی وحی کو پورا کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں. یہ سوال جواب کے مطابق تو بظاہر نہیں بنتا. بیٹے کو کہنا چاہیے تھا آپ اپنے خواب کو پورا کریں. بیٹے نے کہا آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں. تو یہ خواب ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اس کی وجہ ابراہیم امتی نہیں ہے، ابراہیم جلیل القدر نبی ہے. نبی کا خواب نہیں ہوتا، اللہ کی وحی ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی تو اللہ کی وحی ہے. تو حضور نے جب یہ خواب بیان فرمایا، صحابہ کے دل تڑپ اٹھے کہ مدینے سے مکے کا سفر کرنا چاہیے، آپ کی معیت میں کرنا چاہیے، عمرے کا سفر کرنا چاہیے، قربانی کے جانور ساتھ لے جا کر شکرانے کا سفر کرنا چاہیے، ہو سکے تو حج بھی کر کے آنا چاہیے. یا رسول اللہ چلیے. ایک صحابی کی زبان پہ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چل پڑے ہیں.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मक्का मुकरमा नहीं पहुंचे, मक्का मुकरमा से काफ़ी पहले एक जगह का नाम है गदीर इश्तात। गदीर कुएं को कहते हैं, इश्तात करीबी इलाके को कहते थे, तो वहाँ का कुआं था। हुजूर इधर पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम के एक वफादार आदमी, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला एक राहगीर गुजर रहा था। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप मक्का मुकरमा न जाइए, आपके जाने के इत्तलात उन लोगों को हैं। उन्होंने खालिद इब्न वलीद को 200 आदमियों का लश्कर देकर मकाम अमीम में आपके लिए घात लगाकर बिठा दिया है, और आपने अमीम से गुजरना है तो वो यकमुश्त आप पर चढ़ पड़ेंगे, दौड़ आएंगे मारने के लिए, और आपके हाथों में तो सिर्फ तलवारें हैं, क्योंकि आपने कोई जंग की तैयारी तो नहीं की। तलवार तो अरब का शेवा था, वो वैसे ही साथ रखा करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात को तस्लीम किया, और वहीं से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ता तब्दील किया है। रास्ता तब्दील करके हुजूर हुदैबिया पहुंचे हैं, अमीम रास्ते में नहीं आया। इससे पता चलता है सिर्फ सफ़र नहीं करना चाहिए, जंगी हिकमत अमली को भी सामने रखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ एक अजीब वाक़या पेश हुआ। उस जासूस की इत्तला मिली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी ऊँटनी आगे जाकर बैठ गई। ये कुस्वा ऊँटनी है, ये वो ऊँटनी है जिस पर अल्लाह के रसूल ने हिजरत का सफ़र किया है। ये अबू बकर सिद्दीक की ज़र खरीद ऊँटनी थी, अबू बकर ने हदिया में पेश की हिजरत के वक्त। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर हदिया हर जगह कबूल है, लेकिन इस जगह मुझसे इसकी कीमत ले लो, ये मैं ख़रीद लेता हूँ। उसकी वजह हिजरत का बहुत बड़ा सवाब है, मैं चाहता हूँ मैं चंद पैसे मिलाकर सवाब में ख़ुद भी शामिल हो जाऊँ। तो हुजूर के इस हुक्म पर अबू बकर सिद्दीक ने ये पैसे लिए थे, वरना सिद्दीक की जान और सिद्दीक का माल भी हुजूर पे हदिया था। ये ऊँटनी पे हुजूर सवार हैं और वो ऊँटनी बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुदी खान सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें फरमाया हल्ला हल्ला या कुस्वा। ये हुदी थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की। हुदी का मतलब वो जुमला जिससे ऊँट तेज भाग पड़े, उसे हुदी कहते हैं। और इसके लिए भी हुदी खान होना पड़ता है, हरा बंदा नहीं पढ़ सकता, ये बाज बंदे इसमें माहिर होते हैं। वो ऊँटनी न उठी, पूरे रास्ते में चलाते हुए यही आ रहे थे। जब न उठी तो ये परेशान हो गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कहीं बैठ जाए तो ऐसे नहीं बैठती। क्यों? ये सहाबा वो मंजर देख चुके थे जब हुजूर की यही ऊँटनी मदीना में आई थी और हिजरत का सफर था, तो ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर बैठ गई थी। हुजूर ने उस वक्त फरमाया था दऊहा फ़इन्नहा मामूरा, इसे छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। आज भी ऊँटनी है, यहाँ बैठ गई है। जब न उठी तो चंद साहबा ने कहा खल्लतिल कुस्वा या रसूल अल्लाह, बस अब इसका एंड है, कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, शायद नहीं चल सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को भांप लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देख के ऐलान फरमाया और ऊँटनी ने सुना। ये पैगंबर का मौजज़ा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की अता है कि हुजूर जानवरों की ज़ुबानें जानते हैं, जानवर हुजूर का कलाम समझते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को फरमाया ठीक है दुश्मन निकल के आ गया है, अगर उन्होंने अल्लाह के शायर की इज्जत करने के लिए मुझसे कोई दरखास्त की तो मैं मक्का के काफिरों की बात भी अल्लाह की इज्जत के लिए मान जाऊंगा। ये हुजूर ने जुमला कहा, ऊँट वही ऊँटनी चल पड़ी। वो बूट बूढ़ी लगती नहीं है, अब वैसे चल रही है जैसे पहले चल रही है। ये एक इशारा था कि सफर आम नहीं है, ये अहम है, आगे कुछ और मामलात आने वाले हैं। आप समझते हो उम्रे का एहराम में सफर है, शायद मंजर बदल जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया पहुंचे हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कुफार का वफद आया है, हम आपको यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने नुमाइंदे एलची बतौर एम्बेसिडर जिसे कहते हैं सफ़ीर, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के मशवरे से, हजरत अली के मशवरे से हजरत उस्मान को मुकर्रर फरमाया। फरमाया उस्मान आप जाओ, इनसे जाकर बात करो, इन्हें बताओ हम लड़ने नहीं आए, हमारे पास सिर्फ तलवारें और तो कुछ भी नहीं है, हम तो उम्रे के सफ़र से आए हैं, हम लड़ाई के सफ़र से नहीं आए, हमें न रोका जाए, हमें बैतुल्लाह तक जाने दिया जाए। आप बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, आपको हक बनता है, बैतुल्लाह के लिए जो सफ़र करके आए उसको मत रोको। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो पहुँचे हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से पहले भी एक सहाबी गए थे, हजरत खिराश इब्न उमैया रजी अल्लाह अन्हु, उनके ऊँट को भी इन्होंने शहीद कर दिया था और हजरत रबी को मारा भी था। लेकिन जब हजरत उस्मान गए, इनका कबीला, इनकी कौम, बिजनेसमैन आदमी, खाते पीते घराने का बंदा,
मशहूर ताजर, और मक्का में कई बंदे इनके एहसान तले दबे हुए, खानदानों के खानदानों को पालने वाला उस्मान गनी, ये फर्ज इसने जब मक्का मुकरमा में कदम रखा, मक्का के काफिर हिल गए। इनके सामने जुरत तक नहीं हुई कि इनको कोई कुछ कह सके। इनके साथ गुलाम भी नहीं है जो इनकी सवारी का लगाम पकड़ने वाला हो। हुजूर के हुक्म पे अलहदा खादिम की हैसियत से गए हैं। उन लोगों ने बड़ा वेलकम किया, बिठाया और कहने लगे हमारी नाक कट जाएगी, आप लोगों ने हमसे बड़ी जंगें की हैं, हम आपको कह दें आप यहाँ आओ, नहीं नहीं कोई तीसरा रास्ता निकालो, हम नहीं आने देते। ये बातें हो रही हैं, हजरत उस्मान चल रहे हैं और काफिर इनके साथ साथ हैं। इसी असना में मक्का के काफिरों ने बैतुल्ला से गुजरते हुए हजरत उस्मान को कहा वो देखो। हजरत उस्मान ने नजर उठा के देखा तो वो किबला नजर आया जिसे हर लम्हे में देखा करते थे। आज सालों बाद इसे देख रहे हैं, सैकड़ों दिन गुजर गए हैं, बैतुल्ला को देखने का इश्तियाक अपने अंदर है। हजरत उस्मान ने नजर हटा ली, कहा आपको इजाजत है, आइए आप तो तवाफ कर लीजिए, आप बैतुल्ला के बिल्कुल करीब है। हालत एहराम में है उस्मान, बैतुल्ला के पास जा सकते हैं। हजरत उस्मान ने अपने एहराम को भी देखा और हुजूर की नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए कहा हाँ ये किबला है, लेकिन जिस किबले की इताअत पे मैं आया हूं, जिस नबी की इताअत पे मैं आया हूं, उसके बगैर 7 चक्रों का तवाफ किया उस्मान एक चक्कर भी नहीं काटेगा। इधर साहबा हुजूर अलैहि सलाम को कह रहे हैं उस्मान पहुंच गए या रसूल अल्लाह, लगता है उसने उम्रा कर लेना है, लगता है उसने तवाफ कर लेना है। आपने ख्वाब देखा और हमने ना देखा, काबा को इन्हें रोक लिया, उस्मान तो देख कर आ जाएंगे। और हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बिना उस्मान तवाफ कर जाए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को मुज़ाकरात के बहाने इन बेईमानों ने रोक लिया, वहां पर यह अफवाह उड़ा दी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया है, यह अफवाह उड़ी है। इधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को जमा किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान के बदला लेने के लिए बैत करना शुरू फरमाई है। और इधर हजरत उस्मान को रोका जा रहा है, मशहूर ये है कत्ल कर दिया गया है। 1400 सहाबा की हुजूर ने हाथ पे बैत ली है, सब की बैत हो गई। आखिर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ मजीद रखा, बैत में एक हाथ था, एक हाथ मजीद रखा, कहा ये दूसरा मेरा हाथ मेरी तरफ से नहीं है, ये उस्मान गनी की तरफ से है रज़ी अल्लाह अन्हु। बैत हो गई, बैत हो गई। और उधर जब ये बैत की इत्तला गई है, उन लोगों ने कांपना शुरू किया और हजरत उस्मान को कहा आपकी देर हो रही थी, आप पहुंच जाएं, आप जाकर इत्तला दे सकते हैं। हजरत उस्मान वापस आ गए हैं। यहां कुछ बंदे कहते हैं देखो आप कहते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पेश होता है, अगर पैगंबर पे उस्मान का दरूद पेश होता तो हुजूर अलैहि सलाम ये न फरमाते उस्मान कत्ल हो गया है, चलो बात हम तक पहुंची है, आओ बैत करते हैं, वरना हुजूर फरमाते मैं क्यों बैत करूं, मुझ तक तो उस्मान का पड़ा हुआ दरूद आ रहा है। हुजूर ये फरमाते, हमने कहा ये ढकोसला है, छोटी सी एतराज़ी है, एतराज भी नहीं है, अगर इसको बनज़र गायर देख लिया जाए तो ये उसूल भी हल हो जाता है। हजरत उस्मान जब गए थे सुबह की नमाज गलस में हुजूर के पीछे पढ़ के गए हैं, मिसलैन अभी नहीं हुई थी कि असर की नमाज का वक्त होता, उस्मान वापस भी आ गए थे। इस दौरान चाश्त के वक्त बैत हुई है। आप कैसे कहते हो कि दुरूद पढ़ा होगा, उन्होंने तो उस टाइम में नमाज भी नहीं पढ़ी, आप नमाज का पढ़ना दिखा दे। अच्छा अला इख्तिलाफ रिवायात, अगर मैं ये रिवायत मान लूं कि अपनी इनफरादी नमाजें वहां कुछ पढ़ ली थी तो फिर भी एतराज नहीं बनता। उसकी वजह पैगंबर इस्लाम पे दरूद आ रहा होता है और नेक आदमी के आमाल दुनिया में भी जारी रहते हैं, वफात के बाद भी जारी रहते हैं। आपने फज़ाइल अमाल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ चुकी होगी। हजरत शेख ने लिखा है, हजरत साबितुल बुन्नानी रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द थे और दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरे उस्ताद ये हदीस बयान फरमाया करते थे हजरत अनस कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है अंबिया कब्रों में वफात के बाद नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अगर उम्मती को इजाज़त है तो मुझे भी ये नेमत मिल जाए। तो हजरत साबितुल बुन्नानी ने वफात के बाद कब्र में नमाज पढ़ी है। ये शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है और पूरी सनद के साथ, पूरे हवाले के साथ लिखा है। और एक बात मैं यहां आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो मौत के बाद भी तो अमाल पेश होते हैं, वो पढ़ रहा होता है बंदा। हुजूर पाक के ऊपर हजरत उस्मान का दरूद आ भी रहा हो
तो फिर तो ये तो समझ नहीं आ सकता कि ये दुनिया में है या मौत के बाद है, क्योंकि आलिमुल गैब ज़ात तो खुदा की है। और अगर इससे भी बढ़ के बात करूं, हो सकता है अल्लाह ने सहाबा के इम्तिहान लेने के लिए कि सहाबा में जज्बा कैसे आता है, हजरत उस्मान के दुरूद शरीफ चंद वक्तों के लिए रोक दिया हो सकता है। और मैं कहता हूं ना भी रोका हो तो एक इशारा मौजूद है, हुजूर ने जो हजरत उस्मान की तरफ से बैत की है, अगर शहीदों की तरफ से बैत जायज होती तो हुजूर असहाबे बदर की तरफ से बैत करते, उहद के शहदा की तरफ से बैत करते, आप अलैहिस्सलाम खंदक के शहदा की तरफ से बैत करते। हुजूर ने उन शहदा को छोड़ा, उस्मान की तरफ से बैत की। पता चला अल्लाह के रसूल पे नुक्ता खुल चुका था कि हजरत उस्मान मौजूद है, लेकिन सहाबा का इम्तिहान लिया जा रहा था कि अपने भाई के लिए कौन निकलता है। ये कैसे निकलेगी बात कि हजरत उस्मान की यहां से दरूद न पेश होने की बात अखज कर ली जाए। और एक बात मैं मजीद अर्ज करूं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां हुदैबिया पहुंचे थे, यहां पानी बहुत कम था कुएं में, तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पानी कम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने तरकश से तीर निकाल के दिया, कहा मेरा तीर ये जाकर उस गड्ढे में दफन कर दो, गाड़ दो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पानी अता फरमाएंगे। इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है शरहुल मवाहिब में कि जैसे ही तीर गाड़ा गया वो पानी के चश्मे उबलने लगे। एक रिवायत मजीद भी है कि सहाबा कराम ने अपनी मशकों से पानी इकट्ठा किया था, वो एक प्याले में बन गया था, जितना पानी कुल था वो एक प्याले जितना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियां रखी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हुआ और फवारे फूट पड़े और सब ने पी लिया। इस पर एक शायर का शेर मुझे याद आया कि वो तो सहरा में भी प्यासों को पिला देते हैं पानी, मेरे नबी की उंगलियों में समंदर रक्स करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाकया। इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा के लिए कुफ्फार ने आना जाना शुरू किया है। मुआहिदे से पहले उर्वा इब्न मसऊद आए हैं। ये उर्वा बिन मसऊद ये उस वक्त अधेड़ उम्र से भी उम्र क्रॉस कर चुके थे। बादशाहों से गुफ्तगू करनी होती तो उर्वा जाते मक्का के लीडर बन के। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है और बाकी काफरों को रोक देगा, सबर, अभी लड़ाई नहीं करनी, अभी तलवारें नियाम में रखो, मैं जाता हूं। उर्वा आए हैं, उर्वा की आप अलैहिस्सलाम से बात शुरू होने लगी है तो उर्वा ने सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हुए कहा, ये बाद में सहाबी बने हैं, हजरत उर्वा ने कहा अगर जंग हो गई मेरी मक्का की कुरैश कौम आप पे ऐसे वार करेगी या आपके तमाम साथियों ने दौड़ जाना है। ये सहाबा पर एतराज किया। उर्वा नहीं जानते थे ये कौन है, वो तो वही समझते थे कि शायद हमारी तरह के तनख्वाहदार होंगे जो इनका साथ देंगे, 4 टके बढ़ा देंगे तो शायद साथ ठहर जाए वरना भाग जाए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक साथ ठहरे थे और गुफ्तगू सुन रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब देने से पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ओए बुत का पुजारी, ओए बुत को चाटने वाला, तू हम अहले तौहीद पर बात करता है, तुमने मोहम्मद के जानिसारों की जानिसारी नहीं देखी। अगर वक्त आया हम तुम्हें दिखाएंगे वफादारी कहते किसे हैं। तो उसने पूछा ये कौन है, तो लोग बताया गए अबू बकर सिद्दीक हैं। और अबू बकर सिद्दीक के एहसानों तले दबा हुआ ये बंदा था। अगरचे लीडर हो, अबू बकर अपने जमाने के 6 फैक्ट्रियों के मालिक थे, रेशम बेचा करते थे। तो अबू बकर को देख के कहने लगे, हाँ आप पर मेरा एक एहसान था, वो ना होता तो जवाब देता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बाद ये फिर बात कर रहा है और बात के दौरान इसकी उंगली हुजूर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक तक यूं पहुंची गुफ्तगू में। हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे हिफाजत के लिए ठहरे हुए हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु थे और ये उर्वा के भतीजे लगते हैं, उर्वा चचा लगता है इनका। हजरत मुगीरा बिन शोबा अरब के 4 ज़हीनों में पहले नंबर के ज़हीन आदमी हैं, सहाबी रसूल हैं। इन्होंने अपनी तलवार न्याम से निकाली, कहा ओए नापाक मुशरिक, अपनी नापाक उंगली को पैगंबर की पाक दाढ़ी से दूर रख वरना मेरी ये तलवार आपके हाथ को काट कर रख देगी। मुंह पर खुद था, जंगी टोपी थी, वो पहचान न सका ये कौन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा ये कौन है। अब दूसरे की तरफ से बेइज्जती सुनी थी ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके भतीजे मुगीरा बिन शोबा है, वो तो भतीजा था, अब इनको कह दिया। और वह कहने लगा मैंने तेरी तरफ से 4 आदमियों की दियत दी थी, अब तू मेरे ऊपर बोलता है। उन्होंने कहा जी 4 के बजाय 40 की दियत ले ले, पर मेरे नबी की दाढ़ी की तरफ उंगली आई तो फैसला मेरा वही है। फिर इसने उंगली हटा ली। ये भतीजा है लेकिन इसने नस्बी रिश्तों को नहीं देखा, दीन को देखा है। इसके बाद उर्वा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का ताल्लुक देखा।
इमाम ज़ुरकानी लिखते हैं वल्लाहि ला यस्कुतु मिन शारतिन इल्ला अखज़ूहु, एक दाढ़ी का बाल भी हुजूर का गिर जाता ना तो साहबा उसको उठा के चूम के अपने पास महफूज कर लेते। यस्बुहु मिन बललिही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते और वुजू के बाद जो पानी गिरता साहबा उसको उठाकर चेहरों पर मल लेते, पैगंबर के लुआब तक को जाया नहीं होने देते थे। उसने इस मोहब्बत को देखा तो बहुत हैरान हुआ। वो तो समझने आया था कि पता नहीं शायद किस लिए इसके साथ ये बंदे ठहरे हैं। इन्होंने कहा जी मुझे इजाजत दे, मैं अपनी कौम से जाकर बात कर लूं, आप जंग के लिए तो नहीं आए, आप तो अमन के लिए आए हैं। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ। वो चला गया और अपनी कौम को जाकर एक तारीखी जुमला कहा। उन्होंने कहा इज्जत वकार तुम्हारी जिंदगी इसी में है, इस बंदे से लड़ने मत जाना। इसके जो साथी है ना उनके बारे में मैं कहता हूं मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि अस्हाबि मुहम्मद मुहम्मदा, तुमने मुझे सफीर बनाकर बड़े बादशाहों के पास भेजा है, मैंने किसी बादशाहों की बादशाही में ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जैसे हुजूर के साहबा हुजूर से मोहब्बत करते। और फिर आगे कहने लगा वो बादशाह भी नहीं है। ये जुमला क्यों कहा है, ये जुमला क्यों कहा? इमाम ज़ुरकानी फरमाते हैं वो बताना चाहता था बादशाह नहीं है पर नबी है। ये जुमला न कह सका कि कहीं काफिर मुझे मार न दे, दिल से मान चुका था कि यार बादशाहों से तो लालच की वजह से प्यार किया जाता है, इस पर तो उल्टा खर्च कर रहे हैं। तो इस पर इसने अगला जुमला नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने फिर हिदायत अता फरमाई है। इसके बाद एक और शख्स आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये कनानी कबीले का है। हुजूर ने फरमाया अपनी कुर्बानी के जानवरों को खड़ा कर दो। ये बनु कनाना के कबीले जानवरों की और खुसूसन कुर्बानी के जानवरों की बड़ी इज्जतें करते हैं। जब साहबा ने अपने जानवरों को खड़ा किया और कनानी ने देखा तो वो वहीं से लौट गया और अपने लोगों को जाके कहा अगर इस बंदे से तुमने जंग की तो फिर मैं अपने कबीले के साथ मिलकर तुमसे जंग करूंगा। वो जंग के लिए नहीं आए, वो तो कुर्बानी के जानवर साथ लेकर आए हैं, वो बैतुल्लाह के लिए आए हैं। ये काफिरों की कमर टूटती रही टूटती रही। इसी असना में एक शख्स और आए हैं जिनका नाम है सुहैल इब्न उमर। जब ये आए हुजूर अलैहि सलाम इसे जानते थे, ये बहुत संजीदा आदमी है और गुफ्तगू करते हैं, मुआहदे के लिए आए थे। हुजूर अलैहि सलाम ने साहबों को फरमाया कद सहा लकुम अमरकुम, सुहेल आया है। सुहेल का माना होता है छोटी आसानी, तो अब तुम्हारे लिए भी कुछ आसानियां बनती नजर आ रही हैं। तो मिन अमरिकुम, बाज़ जगह मिन तबईज़िया से भी आया है कि तुम्हारे लिए कुछ आसानियां बन जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा शुरू होने के लिए ये जो मुआहदा चला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात और गुफ्तगू चली है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शराइत रखी गई हैं। कहा जी ठीक है। हुजूर अलैहि ने हजरत अली को फरमाया अली लिखो। हजरत अली ने कलम दवात संभाली। उस वक्त का जो चमड़े का या जो है ना पत्ते का जो भी सफ़हा था उसको सामने रख के अलीजुल मुर्तज़ा ने लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने लगे तो उसने कहा हम तो नहीं कहते, हम तो बिस्मिका अल्लाहुम्मा कहते हैं, हम बिस्मिल्लाह नहीं कहते। हुजूर ने फरमाया अली ये लिख दो, इसमें भी अल्लाह का नाम आता है। इससे पता चला ये भी लिखा जा सकता है। हजरत अली ने लिखा और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली लिखो ये मुआहदा हाजा मा क़ज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला अहले मक्का। इस जगह पर पहुंचे तो अली लिख चुके थे ये लफ्ज। तो वो कहने लगा सुहैल बिन अमर कि ये जुमला मत लिखवाइए, हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपसे लड़ते, आपसे मुआहदा करते, हम आपको रसूलुल्लाह मानते नहीं हैं, आप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखवाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगरचे मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम जितनी तकजीब करते रहो, अली ये जुमला मेट दो, इस जगह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख लो। हजरत अली ने हाथ खड़े किए, कहा या रसूलल्लाह मेरी जान आप पे कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, लेकिन जो जुमला रसूलुल्लाह का मैंने आपके नाम के साथ लिखा है, खुदा की कसम वल्लाहि ला अम्हु अबदा, ये हाथ कट तो सकता है, मैं इस जुमले को मेट नहीं सकता। इसे नाफरमानी नहीं कहेंगे, याद रखना, इसे नाफरमानी नहीं कहेंगे, इसे गायत मोहब्बत कहेंगे, गायत इताअत कहेंगे, पीक दर्जे के प्यार को कहेंगे, इसे नाफरमानी नहीं कहेंगे। इससे एक बड़ा जबरदस्त सवाल हल होता है। वो सवाल ये है कि यार लोग कहते हैं ना कि अबू बकर ने पैगंबर की नाफरमानी की थी। कब? का जब अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं हुजूर के हुक्म पे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे आए तो अबू बकर इमामत के मुसल्ले से हटने लगे। हुजूर ने फरमाया ना हटो, तो अबू बकर हट गए थे। अबू बकर ने पैगंबर की नाफरमानी की थी। मैंने कहा अगर अबू बकर पे नाफरमानी का फतवा लगाओगे तो उससे पहले अलीजुल मुर्तज़ा पे पहले लगेगा। इस जगह जो अलीजुल मुर्तज़ा ने कहा मैं नहीं मेटता, अब बताओ क्या होगा?
कहा अली को हुजूर से प्यार था। मैंने कहा अबू बकर को भी हुजूर से प्यार था। और अबू बकर ने पीछे हट के कहा था इब्ने अबी कुहाफा की जुरत नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह की इमामत करे। अबू बकर को भी हुजूर से बुग़्ज़ नहीं था। अबू बकर को भी वही गायत इंतहा है, अपने घर से जवाब मिलता है। बहरहाल हजरत अलीजुल मुर्तज़ा को हुजूर ने फरमाया अली कहाँ लिखा है? हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मी है, और पैगंबर के उम्मी होने का माना अनपढ़ नहीं है, पैगंबर के उम्मी होने का माना है खुदा का शागिर्द। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ लिखा? कहा यहाँ लिखा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से मेट दिया, कहा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख लो। इस मौके पर हजरत उमर कहते हैं मेरा दिल शिकस्ता हुआ, मेरा दिल टूटा। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अनहनु अलल हक, हम हक पर नहीं हैं? हुजूर ने फरमाया बला। उमर क्यों नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह अकतला नाफिल जन्ना, हमारे शहदा जन्नती नहीं है? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। कहा अकतला हम फिन नार, इनके मकतूलीन जहन्नमी नहीं है? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। कहा या रसूल अल्लाह फिर इतना हम दब रहे हैं वजह क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को खामोश कराया, कहा उमर खामोश हो जाओ। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक के पास हजरत उमर गए हैं, यही जुमले जो हुजूर ने फरमाए थे वही अबू बकर ने सेम टू सेम कह दिया, हालांकि हुजूर पाक की बात अबू बकर ने नहीं सुनी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बात पे बात सोचा करते थे कि ये तो फतह थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुआहदा किया कितने समरात इसके फायदे बाद में निकले, ओहो मैंने क्या कह दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बात भी गलत नहीं है और हुजूर की पॉलिसी तो है ही ठीक। मैं यहाँ एक जुमला कहता हूँ, दीनी तहरीकों में काम करने वालों एक जुमला गौर से सुनना। एक कायद की पॉलिसी होती है, एक कारकुन का जज्बा होता है। जज्बा पॉलिसी के ताबे होता है, पॉलिसी कभी जज्बे के ताबे नहीं होती। ये जो कहते हैं ना हमारी ख्वाहिश है, हमारी बात मानी जाए, कारकुन अपना मशवरा दे सकता है, अपनी राय पेश कर सकता है, लेकिन जो क़यादत देख रही होती है, जो लीडरशिप को हालात मालूम होते हैं, वो कायद को मालूम नहीं होते। इसलिए कहते हैं अपने बड़ों पर एतमाद वाला मिजाज बनाओ। जो छत पर ठहरा है वो बताता है तूफान की तुग़यानी और सैलाब की तुग़यानी क्या है, तूफान के बादल कैसे उमड़ रहे हैं, नीचे वाले को नहीं पता। हाँ, सवारी ने नींद भी करनी है, जागना भी है, सफर भी करना है, ड्राइवर ने जागते रहना है। इसने नींद से उठ के अपने ड्राइवर को कहा आहिस्ता क्यों चला रहे हो बेटा, तुझे नहीं पता, ड्राइवर को पता है अब रोड कैसा है, मैंने कैसे चलाना है गाड़ी को। जज्बा कारकुन का अपनी जगह, पर पॉलिसी कायद की सही होती है। पॉलिसी और चीज है, जज्बा और चीज है। जज्बात को इतना न बढ़ाओ कि पॉलिसियों को तोड़ने वाले बन जाओ, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे को बा देख। क़यादत पर एतमाद करने वाले हमेशा कामयाब हुआ करते हैं। वो कहते हैं ना, इस रास्ते पर कदम डगमगाए तो क़यादत को देखा करो, क़यादत को देखा करो, अकाबिर को देखा करो, बुजुर्गों को देखा करो। याद रखो, जिस रास्ते पर फिरौन डूबा है, इसी रास्ते पर कौम मूसा ने निजात पाई है। रास्ता निजात नहीं देता, क़यादत निजात देती है। ये फिरौन के पीछे चले थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चले। तो हजरत उमर का जज्बा है, कारकुन है, हुजूर कायद है। कायद की पॉलिसी कभी जज्बे के ताबे नहीं बनती। जब क़यादत की पॉलिसी जज्बात के ताबे बन जाए उस वक्त शिकस्त मुकद्दर होती है, और जब जज्बा क़यादत के ताबे हो जाए उस वक्त फतह मुकद्दर बन जाती है। हमारे हजरत उस्ताद दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, गुफ्तगू करने के लिए एक मौलवी चला है, एक गाड़ी में बैठा है, दो जज्बे वाले नौजवानों ने चंद बातें की हैं, इसने अपनी तकरीर का उन्वान ही बदल दिया है, कहा कभी यह आदमी मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच सकता। इनने दो जज्बातियों की जज्बात को देख लिया है, इसने जमाने हाल को नहीं देखा, इसने मामलात को नहीं देखा, इसने ग्राउंड को नहीं देखा। इसलिए पॉलिसी पॉलिसी होती है, और यकीन माने ये दुनिया देख चुकी है कि जिन्होंने पॉलिसी में तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया, वो उनकी कामयाबियां उनकी पांव चूमती हुए नजर आती हैं। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे भटक गए। हजरत शेख सरफराज साहब ने लिखा है, गो हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, न हमने रहनुमा बदला, न हमसे काफिला छूटा। तवज्जो, तो हजरत उमर की बात अपनी जगह, लेकिन जो कायद की पॉलिसी थी वो अपनी जगह। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया। मुआहदे के शिक्कों में एक दो शिक्कें थी, 10 शिक्कें थी। उनमें कुछ शिक्के मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। नंबर 1, उनमें पहली शिक ये है,
कि अगर आपने उम्रे का सफर करना है इस साल वापस हो जाओ, अगले साल आएंगे, सिर्फ 3 दिन रहेंगे, उम्रा करके वापस चले जाएंगे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मंजूर है। तो हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास आएगा, अगरचे कलमा पढ़ के आए, आप उसे हमें वापस करोगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जी हां। कहा अगर तुम्हारा कोई आदमी तुम्हारा दीन छोड़ के हमारे पास वापस आएगा, हम वापस नहीं करेंगे। हुजूर ने फरमाया जी हां। आप जरा आगे सुने जो इनके साथ हुआ क्या है, ये शराइत लिखे जाते रहे। कबाइल अरब आजाद होंगे जिसके साथ मुआहदा करें। कहा जी हां। वो कहते गए हुजूर मानते गए, वो कहते गए हुजूर मानते गए। इस पर जज्बाती कारकुन जो होते हैं, कायद की ऐसी पॉलिसी देखकर वो परेशान तो होते हैं। अक्सर साहबा दिल शिकस्ता हुए कि क्या हो गया है, ये शराइत नाजायज क्यों मानी जा रही है, वजह। लेकिन इनके सामने मामला अभी खुला नहीं है, जो क़यादत देख रही है वो कारकुन नहीं देख रहा। मुआहदा लिखा गया है वापसी के लिए। फरमाया यहीं से सर मुड़ाओ, एहराम खोलो, हलक करा लो, कुर्बानी कर लो और यहीं से वापस चलो, अगले साल इस उम्रे की कज़ा का सफर करेंगे। सहाबा इतने दिल टूटे हुए हैं कि हुजूर पाक की इस बात के बाद कोई उठने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बंदा दिल टूटा हुआ है, कोई रो रहा है, किस पे गिरिया तारी है, कोई कहां, कोई अल्लाह के साथ मशगूल। जब किसी ने ये बात पर बज़ाहिर अमल न किया, दिल शिकस्ता, तकालीफ में, परेशानी में, दुख में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन के खैमे में तशरीफ़ ले गए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन ने पूछा या रसूल आपका चेहरा गुस्से वाला है। कहा मुआहदे की बात के बाद मैंने बात की है तो अजीब बात है, उठने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। तो हुजूर हज़रत उम्मे सलमा हुजूर अलैहि सलाम से अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह आप खुद अपना हल्क कराइए, एहराम खोलिए और कुर्बानी कीजिए, फिर देखें आपके जानिसार उठते हैं या नहीं उठते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सर मुड़ाया, एहराम खोला, सर मुड़ाया, कुर्बानी की। फिर सारे सहाबा फौरन उठे हैं और उन्हें काम कर दिया है। देखो इस औरत का मशवरा कई मर्दों के मशवरों पे भारी है। उलमा ने इसके तहत लिखा है अगर औरत ज़ात फरासत हो, समझने और समझाने वाली हो तो उससे मशवरा करने में कोई हर्ज नहीं है। औरत का मतलब बीवी, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बीवी को देखना सवाब है, मैं कहता हूँ शर्त है कि अपनी बीवी हो, ठीक है। इसलिए जुमला पूरा ही समझा करें। आधा बाज़ औक़ात आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं मुआहदा फरमाया। इस मुआहदे के बाद वापस हुए हैं। अभी मुआहदा लिखा जा रहा था, सुनिए अहम पॉइंट में अर्ज कर रहा हूं, मुआहदा अभी लिखा जा रहा है। हजरत अबू जुंदल पहुंचे हैं। अबू जुंदल ये इसी लिखवाने वाले सुहैल इब्न उमर का सगा बेटा है और मुसलमान है। मालूम है साहबा को कितने अरसे से बाप ने बेड़ी में जकड़ रखा है कि तूने कलमा पढ़ा, नहीं जाने दूंगा मदीना, तुझे हिजरत नहीं करने दूंगा। और वो उस वक्त पता चला हुजूर आए हुए, उसने जैसे कैसे तैसे वो बेड़ियां छुड़ाई और रोते हुए पहुंचे कि या रसूल अल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का विर्द शुरू किया। साहबा का हालत क्या होगा अब बताओ, वहां उस वक्त मंजर क्या होगा। सारे साहबा ने अपने दुखी मुसलमान को देखा, गले से लगाया, बैठाया, कहा हम तुझे साथ मदीना ले जाएंगे और यहां शर्त लिखी जा रही है, हमारा कोई बंदा आपके पास आएगा, आप लौटाने के पाबंद होंगे। तो सुहैल इब्न उमर ने कलम पकड़ लिया, कहा मेरा बेटा है, इसे वापस करो, मैं वापस लेकर जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया सुहैल अभी तो मुआहदे पर दस्तखत होना बाकी है, अभी तो दस्तखत नहीं हुए, इतनी सख्ती की क्या बात है। जब दस्तखत हो जाएंगे, बात पाया तकमील को पहुंच जाएगी, फिर बात करेंगे। ये मजलूम है, हमारे पास आने दो। हुजूर के इसरार पर भी वो बंदा नहीं माना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोती आंखों, डुबगाती आंसुओं से आंखों को रखते हुए हजरत अबू जुंदल को वापस किया। तो अबू जुंदल कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मुझे इसी हालत में वापस कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने हाथ दराज किए और अल्लाह से बात करके फरमाया या अबा जंदल इस्बिर वहतसिब फइन्ना ला नक़दिर इन्नल्लाह जाइलुल लक फरजन व मखरजा। अबू जुंदल मैंने अल्लाह से मांग लिया है, तुम सब्र कर लो, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। मैं कभी मुआहदा करके तोड़ने और गद्दारी करने वाला नहीं हूं, यह हमारी सिफतें नहीं हैं।
और यकीन से कह रहा हूं तेरा सब्र होगा, अल्लाह ये अंधेर के दरवाजे खोल देंगे, तेरे लिए जरूर आसानी का रास्ता निकालेंगे। ये खुशखबरी लेकर अबू जंदल वापस हुआ। साहबा कहते हैं हमारे दिल का खून हो गया, हमने ऐसे अपने मुसलमान भाई को अपने हाथों से वापस किया। हम चल पड़े हैं, रास्ते में आयत उतरी, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपको फतह नहीं दी बल्कि रोजे रोशन की तरह फतह दी है। ये बात में जो फतह खैबर मिली है और जो इसके फवायद सामने आए हैं, उस वक्त हजरत उमर समेत बाकी साहबा कहते थे अल्लाह अकबर। हम उस वक्त जज्बात में क्या कर बैठे थे, लेकिन हुजूर अलैहि सलाम ने इस पर नाराजगी का इजहार नहीं फरमाया। हुजूर ने जज्बे को तस्लीम फरमाया अपनी जगह पर। जब हुजूर अलैहि सलाम का ये मुआहदा चला है, इस मुआहदा का 10 साल का चला था, लेकिन 2 साल भी न चल सका, 2 साल भी न चल सका। मक्का फतह हुआ, काफरों ने हाथ पकड़ के अपने हाथों से शर्तें वापस ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे के बाद पहला फायदा, आना जाना खुल गया। जो आज तक एक दूसरे के पास नहीं आ सकते थे, वो अब आओ जा रहे हैं। जो उधर से आ रहा है, इधर मुसलमानों के हालात से वाकिफ होकर उधर कारगुजारियां सुना रहा है। भाई यहाँ तो बुत के सामने लेट रहे हैं, ये बुत अपने ऊपर से मक्खी नहीं हटा सकता, हमारे ऊपर से तकलीफ कैसे हटाएगा। तौहीद के नगमे जो आज तक मक्का में बंद थे, वो गूंजने लग गए हैं। जिस मजहब का प्रचार वहां पर बंद था, अब मजहब का प्रचार शुरू हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तराने गूंज रहे हैं, एक एक बात चल रही। साहबा तो काफिरों को छोड़ के आए हैं ना, वो तो उनकी बात को सुनते नहीं है, लेकिन वहां चर्चे हैं, वहां बातें हो रही हैं। अगली बात, जो लोग कबाइल में थे, कुरैश से डरे हुए थे, अब मुआहदे में उनको इख्तियार मिल गया है, इधर मिले या इधर मिले। अक्सर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मिल गए हैं। कुरैश से हटके जो बाकी कबीले बैठे थे कि इनका आपस में क्या होता है, फिर हम कलमा पढ़ेंगे, वो सारे कबीले मुसलमान होना शुरू हुए। कहते हैं बेअसत से लेकर हुदैबिया के वाकया तक इतने मुसलमान नहीं हुए थे जो इतने 2 सालों में हो गए। मुआहदा खुलता जा रहा है, मामला बनता जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना में है, अबू बसीर आए हैं रजी अल्लाह अन्हु। ये वो सहाबी हैं जो अबू जंदल की तरह मजलूम थे। हुजूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह कलमा पढ़ के आया हूं, छोड़ दिया है मक्का। पीछे सुहैल इब्न उमर के 2 बंदे लेने आ पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बसीर, मैंने अबू जंदल को रोती आंखों के साथ छोड़ा था, मेरा मुआहदा चल रहा है, आपको वापस होना होगा। अबू बसीर ने सर तस्लीम खम करते हुए वापसी का सफर लिया है। रास्ते में जुल्हुलैफा में पहुंचे हैं और वहां पर ठहरे हैं, जिसे आज बेर अली कहते हैं। तो हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु ने मक्का के इन काफिरों को देखा, हरबी काफिर हैं, इनका कत्ल ऐसे जैसे किसी मक्खी को मार दो। हजरत अबू बसीर जानते थे। अबू बसीर ने कहा यार वाह, उस काफिर कहने लगे बड़ी अच्छी तलवार रखी है, इसकी तो चमक धमक है, बड़ी अजीब है, जरा दिखाना। उस बेवकूफ ने हाथ में तलवार नियाम से निकाल के दे दी। इस जंगी फाइटर ने तलवार पकड़ी और सर को तन से जुदा किया और दूसरे को कहा ठहरने जरा तू। जो 2 बंदे पकड़ने आए थे वो तो वापस भागा और वहीं से निकल पड़ा और ये हुजूर के पास फिर मदीना आए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने गुस्से का इजहार फरमाया, काबू बसीर ये काम भी करना था तो फिर मेरे पास आते, मेरा तो मुआहदा है, ये कैसा कह रहे हो। अबू बसीर ने देखा कि अब हुजूर अलैहिस्सलाम का इताब और गुस्सा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, हो सकता है काफिरों को दूसरा वफद है, हुजूर फिर भेज दें। यहां से निकले और सैफुल बहर में पहुंच गए। ये सैफुल बहर मक्का और मदीना के दरमियान जहां से समंदर शुरू होता है ना, ये उसका इब्तिदाई हिस्सा है। ये मदीना मुनव्वरा से तकरीबन हो तो 150 किलोमीटर के लगभग का सफर बनता है। हजरत अबू बसीर वहां पहुंचे और वहां खैमा लगा लिया, बैठ गए हैं। और उसके बाद मक्का इत्तला पहुंची है। सुहैल इब्न उमर ने कहा मैं दियत लेने के लिए हुजूर से राब्ता करता हूं। अबू सुफियान ने हाथ पकड़ा, कहा किस मुंह से दियत मांगेगा, हुजूर ने तो वापस कर दिया था, हमारे बंदों की गलती थी जो अपनी हिफाजत नहीं कर पाए, कोई दियत शियत नहीं है, हुजूर पर एतराज नहीं आता। तो सुहैल ठहर गए। उधर अबू जंदल को मालूम हुआ वहां पर अबू बसीर ने खैमा लगाया है। अबू जंदल ने बेड़ियां छुड़ाई और उसके पास पहुंच गए। ये एक नहीं अब 2 मजलूम थे, 1 और 2 11 बन गए। जो मुसलमान होता इनके पास पहुंच जाता। कुछ ही दिनों में इनकी इतनी कुव्वत बढ़ गई, इमाम जुरकानी की एक रिवायत के मुताबिक 300, एक रिवायत में 70 है, लेकिन 300 की रिवायत में लिखी
काफी बड़ी जमीयत और काफी बड़ी जमात बन गई। तो रास्ते में जो मक्की काफिर गुजरता वो अपने माल को साथ लेकर घर न पहुंच सकता। आखिर तो इनकी तिजारत खसारे में पड़ गई, इनका कारोबार घाटे में आ गया। मक्का के काफिर हुजूर को भी कुछ नहीं कह सकते थे कि हुजूर ने तो वापस कर दिया है। ये अपने नौजवान बिफरे, और ऐसे बिफरे जैसे कहते हैं घर का बेटी लंका ढाए। अब तो बहुत परेशान है। इनने मशवरा किया क्या करें। लोगों ने कहा जो गलत शर्त लिखवाई थी ना कि हमारा कोई मुसलमान होकर जाएगा तो वापस लौटाएंगे, अब ये उल्टे बांस हमारे सर लग रहे हैं। जाओ और ये शर्त वापस लो, और हुजूर से अर्ज करो ये शर्त वापस लेते हैं और तुम इन्हें संभाल लो, हो सकता है कोई हमारे लिए रास्ता पुरअमन हो गए। वही आए, मुंह लटकाए आए, शर्मिंदे होकर आए और आकर कहा हम माजरत करते हैं, वो शर्त वापस ले लें, इन बंदों को आप संभाल लें, इन्होंने तो हमारा जीना छुड़ा दिया है। हमसे हमारे बच्चे हमसे मुलाकात करते वक्त कहते अब्बू हम यतीम, हमें यतीमी की चेहरा देकर आप जा रहे हो। हमारी बीवियां कहती हैं आप वापस आओगे या नहीं आओगे, या मैं बेवा बन जाऊंगी। हमारे तो घरों के हालात अबतर हो गए। हम माजरत करते हुए शेख वापस लेते हैं, आप चाहें तो इनको वापस बुलाए। हुजूर ने फरमाया था शेख भी तुमने लगाई थी, वापस भी तुमने ली है, ठीक है मैं अबू बसीर को खत लिख देता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का खत एक सहाबी ने उठाया, ऊंटनी दौड़ाई और अबू बसीर के पास पहुंचे। कहा बेटा फाक की बातें छोड़ दो, आओ हमारे साथ मिल जाओ, अब शेख खत्म हो गई है, आप हमारे भाई हैं, हमारे पास पहुंच जाओ। अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु इन 300 सहाबा को तैयार करते हैं, मजमा जमा किया, खिताब फरमाया, हुजूर का खत दिखाया, बार बार चूमते, आंखों पर रखते थे। एक बार कलमा पढ़ते हुए कहा आओ चले उस नबी के पास जिसके दीदार के लिए इतनी दिनों से आंखें तरसती हैं। आओ हुजूर का खत हमारे पास आया है, ये खत झोली में है। अल्लाह को क्या मंजूर था, अबू बसीर की रूह परवाज कर गई। ये खत झोली में, हुजूर का नामी ग्रामी वालिया नामा अपने सीने पर रखते हुए अबू बसीर फौत हुए। अबू जुंदल साहबा की क़ियादत करते हुए इनका नमाज जनाजा पढ़ के इनको दफन करके सैफुल बहर पे कब्र रखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना आए हैं, तब जाकर ये शेख खत्म हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि, देखो ना ये मुआहदा था ना, ये 300 बंदों को कलमा पढ़वा गया है। क़ियादत की पॉलिसी क़ियादत की पॉलिसी होती है। 300 बंदों को कलमा पढ़वा गया। हदीस में नहीं है एक काफिर को कत्ल करने से 70 काफिरों को कत्ल करने से बेहतर है किसी एक को कलमा पढ़ा दो। यहां 300 ने पढ़ लिया है। कारकुनों को क्या पता था कि इस शर्त का मतलब क्या, और शर्त हाथ बांध के वापस की थी, साहब गुजारा करो। अब वो हाथ बांध कर शर्त देकर गए हैं, हत्ता योतुल जिज़ियत अन यदिम वहुम सागिरून। जिजिया देने में भी एक बात है, अल्लाह फरमाते जब ये जिजिया देने काफिर आएगा ना मुसलमान हुकूमत को, घोड़े पे चढ़ के नहीं आएगा, जिलील होकर पैदल चलते हुए आएगा। तो ये जिलील होकर अपनी शर्त उठाने आए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बंदे पहुंचे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये यहां पर पहुंच गए। इसी असना में कुछ औरतों को ये जज्बा हुआ, मुसलमान होना चाहिए, हिजरत का हुक्म है, मक्का से निकल के हुजूर पाक के पास जाना चाहिए। ये खवातीन हैं, कुछ बड़ी उम्र की हैं, कुछ नौजवानों को साथ लिया और ये मक्का मुकरमा आ गई। मक्का मुकरमा से निकल के मदीना आ गई हैं। और मदीना मुनव्वरा आए तो जब मक्का उस वक्त दारुल कुफ्र था, मदीना दारुल इस्लाम था। मसला यह है दारुल कुफ्र से औरत निकल के दारुल इस्लाम में कलमा पढ़ के आए तो इद्दत के दौरान अगर काफिरों दोनों खावन बीवी, बीवी पहले कलमा पढ़ ले तो इसकी इद्दत शुरू हो जाएगी, निकाह खत्म हो जाएगा। दौरान इद्दत खावन कलमा पढ़ ले तो बीवी लौटा दी जाएगी, वरना इद्दत के बाद जहां चाहे निकाह कर देगी, क्यों अब ये मुमिना बन चुकी है और वो काफिर है। लेकिन दार तब्दील होने से तो इद्दत भी नहीं रहती। अब ये वहां से ये निकली और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहां मदीना मुनव्वरा पहुंची हैं तो पीछे उन काफरों को, किसी की बीवी, किसी की बहन, ये सारे आ गए, हमें हमारी औरतें लौटा दें। ये हजरत अबू बसीर के वाक्य से कुछ टाइम पहले की बात है। आपकी और हमारी शर्त है, हमारा बंदा आपके पास आएगा, आप लौटाएंगे। अभी ये शर्त टूटी नहीं थी। हुजूर ने फरमाया मुआहदा पढ़ो। उधर लिखा हुआ है हमारा मर्द आपके पास आएगा। कहा आप मर्द हैं? आपने तो औरत का लफ्ज नहीं लिखा था, आपने तो मर्द लिखा है। मैं ऐसे फैसला नहीं कर सकता, वही का इंतजार करेंगे। अल्लाह की तरफ से वही है, सूरत मुमतहिन आयत नंबर 10, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकल मुमिनातु मुहाजिरात फम्तहिनुहुन्ना अल्लाहु आलम बिईमानिहिन्ना फ़इन अलिमतुमुहुन्न मुमिनात
फला तरजिऊहुन्न इलल कुफ्फार ला हुन्न हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन। ऐ ईमान वालो, ये औरतें आए तो दीन का इम्तिहान लो, बाकी दीन के लिए आई है, कोई दुनिया की गर्ज के लिए नहीं आई। किसी औरत को किसी काफिर के पास लौटाने का हुक्म मैं मना कर रहा हूं। ला हुन्न हिल्लुल लहुम, अब वो काफिर मर्द इनके लिए हलाल नहीं रहा। वला हुम यहिल्लून लहुन, न इनके साथ उनकी बात हो सकती है, कुछ नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जहां मुनासिब समझे इस औरत का निकाह भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर हक महर और मुकम्मल ये पूरे आकाम खुदाबंदी की पूरी लाइन उतर गई है। और इधर से हुजूर ने मुआहदा दिखा, तुमने तो मर्द लिखा था, रजुलन का लफ्ज है, रजुलन मर्द को कहते हैं, इमरातुन तो नहीं है कि औरत की बात है, और ये खासर वहीं से लौटे हैं। उसके बाद हजरत अबू बसीर रजी अल्लाह ताला अन्हु वाला वाकया हुआ है। ये सुलह हुदैबिया की चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र है, अहम सफ़र है, और इसी महीने का सफ़र है जो महीना आपके सामने और हमारे सामने चल रहा है, जुल्कादा। ये जुल्कादा 6 हिजरी की बात है और आज जुल्कादा 1439 हिजरी है। तकरीबन आज से ये जो बनता है ना, अगर 6 साल निकाल लें तो 1433 साल पुरानी बात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दुआ फरमाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और हमें इस सुलह हुदैबिया वाले सबक से हमें सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इन सहाबा कराम की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, हुज़ूर की आल पर, हुज़ूर के सहाबा पर। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ज़लु ज़िक्रि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इलाहा इल्लल्लाह, ला 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 इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
illallah, 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 la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللہ جل شانہ و تعالی شانہ و اما نوالہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر والسقر والقرض والمرض وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين إلهي نجني من كل ضيق بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لي في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقي آمين بجاه النبي الكريم صلی اللہ علیہ التحیت والتسلیم۔ اے میرے اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما، اس ذکر کو قبول فرما، اے اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے رطب اللسان فرما، اے میرے اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرد، ہمارے عورتیں، ہمارے نوجوان، بوڑھے بچوں کو دین کا پابند بنا۔ اللہ ہمارے ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما۔ اے اللہ علماء کی مدد فرما، ان اہل حق علماء کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد حاصل کرنے میں جتنی رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کی طاقت حاصل کرنے میں جتنی رکاوٹیں، ان تمام رکاوٹوں اور مشکلات کو دور فرما۔ اے اللہ ان کا حامی اور ناصر ہو جا۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گھر بار کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہنا چاہتے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جن خواتین ماؤں بہنوں نے لکھ کر بھیجا، پیغام بھیجے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بے نکاحیں ہیں انہیں حق نکاح عطا فرما، جوڑ اور خیر کے رشتے عطا فرما۔ جن کے نکاح ہو چکے ان کی اولاد ازواج کو آپس میں محبت اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ پیار عطا فرما۔ اے اللہ جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ جن بیماروں کے لیے لکھ کر بھیجا ہے، اللہ ان تمام بیماروں کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ صحت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے جن دوستوں کی اولادیں ہیں، اللہ ان تمام کی اولادوں کا نیک مستقبل بنا۔ اے اللہ بھائی زاہد کی بچی پیدا ہوئی، اس کا نیک مستقبل بنا۔ اس سمے تمام ہمارے جو صاحب الاولاد ہیں، اللہ ان کی اولادوں کا نیک مستقبل بنا۔ اے میرے اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، جن کے بچے ہیں ان کو بچیوں کی نعمت عطا فرما، جن کی بچیاں انہیں بچوں کی نعمت عطا فرما۔ اے میرے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ اللہ جو حضرات حج کے لیے تشریف لے گئے یا لے جائیں گے، ان کے حج کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا کعبے کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمی جمار کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ طواف کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ وقوف عرفہ کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ مزدلفہ میں ٹھہرنے کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ثواب میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ حج مقبول اور مبرور عطا فرما۔ میرے اللہ تیرا وعدہ ہے اس حج کے اوپر جو گناہ ہو ان گناہوں کو آپ معاف کر دیتے ہیں۔ میرے مولا یہ سعادت ہمیں عطا فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطیوں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ اللہ ہماری آنکھ حیا والی عطا فرما دے، ہمیں زبان اپنا ذکر کرنے والی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اعضاء آپ کی اطاعت والے عطا فرما دے۔ اللہ نافرمانیوں سے محفوظ فرما دے۔ اللہ تمام گناہوں سے توبہ، ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ آئندہ ہمارے اوپر رحمتیں، کرم اور برکتیں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے اس خانقاہ کے فیض کو عام فرما دے، اللہ ان کے فیض کو عام فرما دے۔ اللہ ہمارے اس مسجد مدرسے اور اس خانقاہ کے خاص اے اللہ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ شرور اور فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ فرما۔ اللہ حق کے ساتھ یوں تعاون کرنے والے دوستوں کے گھروں اور خیر برکات کے ساتھ تعاون عطا فرما۔ اے میرے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، دنیا کے جس کونے پہ جو مظلوم مسلمان ہے اس کی مدد فرما۔ اے اللہ حجاج کی حفاظت فرما،
मोतमरीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा, रोज़े की, रोज़े रसूलुल्लाह की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। अल्लाह हाज़रीन के दिलों में जो जायज़ हाजात और ख्वाहिशात हैं, अल्लाह इन तमाम जायज़ हाजात और ख्वाहिशात को कबूल फरमा। अल्लाह मेरे दोस्त जितने दुनिया से रुखसत हुए, खुसूसन भाई शान के वालिद, ये बाकी जो अहबाब हैं, अल्लाह मैं किस किस का नाम लूँ आप सबको जानते हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। Thanks for watching. Like, share, subscribe. Mudassir Hidayati. Allah Hafiz.